Good morning, students. I am going to describe your next reader chapter of your English reader book, The English Circle of 8th grade. Let's move on your first prose chapter. Last time we completed poetry's first chapter. Now today we will start the prose first chapter, The Strawberry Pink Villa. This is the name of the chapter, but actually this chapter taken from the book, as I told you, Garland 12, an extract from My Family and Other Animals. My Family and Other Animals. This is the book written by Garland Dwell, and this chapter was taken from that book. ठीक है, again adapted. What is adapted? When we take some part of the book of any other novel. जब हम किसी नॉवल से या किसी बहुत बड़ी बुक से कुछ पार्ट उसका अलग से पढ़ते हैं, हमारी बुक्स में आता है, दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टेड. सो दिस चैप्टर इज़ अडेप्टेड. एज आई टोल्ड यू, माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स, दिस वॉज द बुक फ्रॉम वेयर दिस चैप्टर वॉज टेकन आउट. द स्ट्रॉबेरी पिंक विला. Shifting house can be traumatic as well as exciting. Packing, loading, moving again, unloading, unpacking. Clear? In this chapter we will consider about the shifting the house. So वो बता रहे हैं for the warm up कि shifting house is a ट्रोमैटिक होता है दर्दनाक, एज वेल एज एक्साइटिंग, लाइक पैकिंग करना, लोडिंग करना, मूविंग अगेन एंड अनलोडिंग अगेन, अनपैकिंग. बट इफ़ योर न्यू हाउस इज़ अ प्लेस you intensely love and you feel at home the moment you see it. ठीक है, moment you see it means, but these things, between these things, packing, unloading, unpacking, when you saw that place where you have to move, then at that moment you see that the house you completely in love. Well, nothing could be better. ठीक है, अगर आपको पहली बार में उस जगह से प्यार हो जाए जहाँ पे आप शिफ्ट करने जा रहे हो, उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती. हैव यू एवर हैड टू शिफ्ट हाउस. क्या आपने कभी हाउस शिफ्ट किया है? What will you miss about your house if you have to shift? Share with your partner. ठीक है, अगर आपने कभी सच में किया है, then share your experience about shifting the house. Let's begin the chapter. Reading. The villa was small, square, standing in its tiny garden with an air of pink-faced determination. Okay, now I want to clear in starting. The first paragraph is completely introduction about the villa. जहाँ पे वो विला है, वो वहाँ उसके आसपास एक गार्डन है, पूरी तरह से गार्डन से वो कवर है विला, एंड लुक्स वेरी ब्यूटिफुली. सो इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ दिस इज़ द ऑल इंट्रोडक्शन अबाउट द गार्डन. द विला वाज स्मॉल, स्क्वेयर. ठीक है, जो विला है वो स्मॉल है एंड स्क्वेयर शेप में, स्टैंडिंग इन इट्स टिनी गार्डन. ठीक है, गार्डन के बीच में है वो, विद एन एयर पिंक फेस डिटर्मिनेशन. ठीक है, पिंक फेस डिटर्मिनेशन मीन्स जब हम एक नज़र में उस विला को देखते हैं तो वो पूरी तरह से हमें पिंक दिखाई देता है. Its shutters had been faded by the sun to a delicate creamy green, cracked and bubbled in places. Again the meaning of this line, that was the garden. Its shutter had been faded. ठीक है ना, faded means सूरज की रोशनी जो है वहाँ पे जो फ्लावर्स हैं, थिंग्स हैं, ट्रीज़ हैं, क्रीमी सी ग्रीन है, वो पूरी तरह से डेलिकेट शो हो रहे हैं फॉर द सन. ठीक है, उसकी जो शेडो है वो, उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है फेडेड. क्रैक्ड एंड बबल इन प्लेसेस. ठीक है ना, क्रैक्ड इन बबल का मतलब क्या है कि जब सन की रोशनी पड़ती है फ्लावर्स पे, ट्रीज़ पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हैं, बहुत ज़्यादा लीव्स हैं, and completely looks beautifully villa that was. So they want to tell they have to feather the bubble places, मतलब उस shadow को भी वो एक beautifully look दे रहे हैं. The garden surrounded by tall fuchsia hedges. ठीक है, fuchsia a small bush with pinkish flowers. As I told you, first paragraph is completely the introduction of the garden. So
द गार्डन सराउंडेड बाय टॉल फ्यूशिया, ठीक है। फ्यूशिया आई टोल्ड यू पिंकिश कलर के फ्लावर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पिंक फेस्ड, ठीक है। डिटर्मिनेशन मीन्स वहाँ पे गार्डन में इतने ज़्यादा पिंक फ्लावर है कि वो पूरी तरह से उसको पिंक फेस डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं। हैड द फ्लावर बेड्स वर्कड इन कॉम्प्लिकेटेड जियोमेट्रिकल पैटर्न्स, ठीक है। वहाँ पे जो फ्लावर बेड्स है, फ्लावर बेड्स मीन्स वहाँ पे इतने ज़्यादा फ्लावर हैं, वो किस कॉम्प्लिकेटेड जियोमेट्रिकल पैटर्न्स में काम कर रहे हैं। मार्क्ड विद स्मूथ वाइट स्टोन्स, ठीक है ना। वहाँ पे मतलब गार्डन में इतने ज़्यादा फ्लावर्स हैं, इतने ज़्यादा फ्लावर बेड हैं कि वो जियोमेट्रिकली पैटर्न शो कर रहे हैं। और उन जो फ्लावर्स को हैं, ट्रीज़ हैं, आपने देखा होगा नॉर्मली गार्डन में जो फ्लावर्स और ट्रीज़ होते हैं उनको स्टोन्स के साथ मार्क किया जाता है, ठीक है ना। स्टोन्स से हम डेकोरेट भी करते हैं कुछ। सो विद दे आर मार्क्ड बाय स्मूथ वाइट स्टोन्स। Roses dropped petals that seemed as big as smooth as sauces. Marigolds like broods of shaggy suns, ठीक है, broods is offspring, stood watching their parents progress through the sky, ठीक है। Again roses जो है dropped their petals and seemed as big as smooth as a sauces. This is very easy, no need to translate. roses के जो petals हैं they are dropped and they are so big as a like a sauces. marigolds are their broods of spring of shaggy, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हर तरह का फ्लावर है which is also offspring is there, stood watching their parents progress, ठीक है। one more is line is there, स्टूड वॉचिंग द पेरेंट्स प्रोग्रेस मीन्स वहाँ पे कुछ ऐसे फ्लावर्स भी हैं जो अपने पेरेंट्स को प्रोग्रेस होते हुए देख रहे हैं थ्रू द स्काई। इन द लोअर ग्रोथ द पेनिस पुश्ड देयर वैलिडिटी innocent faces through the leaves and the violets drooped sorrowfully under there, ठीक है। in the lower growth of pansies, वट इज़ पेंसिस, पेंसिस भी एक तरह के फ्लावर्स होते हैं जिन्होंने पूरी तरह से कल्टिवेटेड एरिया को कवर किया होता है। पुश्ड देयर वेलवेटी इनोसेंट फेसिस, ठीक है ना। वो उनका जो कलर है वो वेलवेट कलर का है। थ्रो द लीव्स एंड द वॉयलेट ड्रूप्ड सोरोफुली, ठीक है। जो वॉयल्स है वो भी धीरे धीरे ड्रॉप हो रहे हैं, मतलब जो ऑफ स्प्रिंग फ्लावर्स है वहाँ पे वो धीरे धीरे ड्रॉप हो रहे हैं। लाइक दैट मीनिंग ऑफ दिस लाइन। मूव ऑन नेक्स्ट पेज। अंडर देयर हार्ट शेप्ड लीव्स, ठीक है। उनके जो लीव्स है वो हार्ट शेप्ड के हैं। दे आर ड्रॉप्ड देयर अंडर द हार्ट शेप्ड लीव्स। क्लियर द bogulus traveled luxuriously over the tiny front balcony and was hugged as though for a carnival. Again bogule is the show the cultivated area of the flowers. spraveled होता है बहुत खुल के बिखरे होना, बहुत आराम से बैठना। luxuriously over the teeny front balcony, ठीक है। जो पूरा गार्डन है वो बहुत ही खुला है, बहुत ही आराम से फैला हुआ है। उसके लीव्स, टीनी फ्लावर्स, एवरीथिंग इज lay down on the balcony and was hung out there as a carnival. ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर पूरी तरह से कार्निवाल आया हुआ है। इतने ज़्यादा वहाँ पे फ्लावर्स हैं, इतने ज़्यादा वहाँ पे, मतलब इट्स अ completely beautiful garden was there. You can't imagine that how many flowers are there, how many trees, how many things are there. Different flowers are present there of any colors. As soon as we saw it, we कौन है वहाँ पे जो फैमिली शिफ्ट करने गई है, we wanted to live there. It was as though the villa had been standing there waiting for our arrival. We felt we had come home, ठीक है। जैसे ही हमने उसको देखा हमें लगा कि हम बहुत ही अच्छी जगह पे आ गए हैं। As soon as we standing one there is had been villa waiting for our arrival. ऐसा लग रहा था कि वो जो विला है हमारे अराइवल में पूरी तरह से प्रेजेंट है एंड जो विला है वो हमारी वेट कर रहा है। We felt we had come home. हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम घर आ गए हैं। Having lumbered so unacceptedly into our lives, Spiro now took our complete control of our affairs. What is the meaning of lumbered? Already given in your book. Moved in an awkward way. Clear? Now having lumbered means एज आई टोल्ड यू मूव्ड इन एन ऑकवर्ड वे, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि अभी हम उस हाउस की तरफ बहुत ही ऑकवर्ड वे में चलकर अनएक्सेप्टेडली अपनी लाइफ्स की तरफ जा रहे थे। स्पीरियो नाउ टुक अवर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ अवेयर्स, ठीक है।
स्पीरियो है, स्पीरियो इज़ just for name that he is a servant, but actually for that family he is not a servant. वो एक ऐसा पर्सन है जो उनकी लाइफ्स की, उनके हर काम में everything he did for them, ठीक है. So as I in a story I already clear you who is Spiro, ठीक है. But one more thing I want to clear you, just a name for him सर्वेंट, बट एक्चुअली वो एक ऐसा फैमिली मेम्बर है उनके लिए जो उनके हर काम करता है. किसी भी तरह का कोई भी काम हो, स्पीरियो उस चीज़ को हैंडल करता है. सो दैट्स वाई जस्ट रिमेन इट, वो सर्वेंट है बट नॉट फॉर अ सर्वेंट फॉर दैट फैमिली. नाउ टुक अवर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ अफेयर्स, ठीक है. स्पीरियो वहाँ पे है हमारे हर काम को कंट्रोल करने के लिए. इट वॉज बेटर ही एक्सप्लेन्ड for him to do things as everyone knew him and he would make sure we were not swindled. swindle क्या होता है? cheated. सो वो कह रहा है कि इट वॉज़ बेटर, वो कह रहा है कि हम सभी उसे जानते हैं और वो हमें बहुत अच्छी तरह जानता है, ठीक है. वो हमारे लिए ही एक्सप्लेन्ड, वो हमारे लिए फॉर हिम टू डू थिंग्स, वो हर काम हमारे लिए करता है, ठीक है. ही वुड मेक श्योर वी वर नॉट स्विंडल, वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि हम एक दूसरे को चीट ना करें. डोंट्स यू वरीज योर सेल्व्स अबाउट एनी थिंग्स मिसिस ट्वेल्स, ठीक है ना. Here is SSS, this is a Greece language. So he is a Spiro who is talking about the Mrs. Dwells. He had scrawled leaves everything to me, ठीक है. अभी वो उस फैमिली से क्या कह रहा है कि डोंट यू वरीज, ठीक है, वेरी क्लियर, आप चिंता मत करो, डोंट वरी, आप अपने किसी भी चीज़ के लिए चिंता मत करो. मिसिस ड्वेरल्स, ही स्क्राउल्ड, मतलब वो स्क्राउल्ड इन द सेंस वो चिल्ला नहीं रहा, वो बहुत जोश के साथ उनको बोलता है लीव्स एवरीथिंग्स टू मी, ठीक है, आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए. सो ही वुड टेक अस शॉपिंग एंड आफ्टर an hour's sweating and roaring he would get the price of an article reduced by perhaps 2 marks. नाउ अब वो बता रहे हैं कि क्या है सुपीरियर, ठीक है. ही वुड टेक अस शॉपिंग, वो उनको शॉपिंग के लिए कहता है. हैव आफ्टर एंड स्वीटिंग एंड रोडिंग, स्वीटिंग एंड रोडिंग में बार्गनिंग करना. ही वुड गेट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस्ड, ठीक है ना. जो भी वो शॉपिंग करते हैं उसके लिए उसका प्राइस कम करने के लिए ही वाज क्या करता है, उनसे स्वीटिंग करता है, बहस करता है, रोरिंग करता है. परहैप्स 2 डेकमार्क्स, ठीक है. डेकमार्क्स इज अ करेंसी फॉर्मर यूनिट्स ऑफ मनी इन ग्रीस. इट वॉज नॉट द कैश बट द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग ही एक्सप्लेन्ड. अभी वो बता रहे हैं कि सुपीरियो ये सब कुछ कैश के लिए बहस नहीं करता बल्कि प्रिंसिपल, सिद्धांत, उस चीज़ के सिद्धांत को वो एक्सप्लेन करता है. इट वॉज सुपीरियो हु ऑन डिस्कवरी that our money had not yet arrived from England took it upon himself to go and speak severally to the bank manager about his lack of organization. Now फैमिली बता रही है कि वो सुपीरियो ही है जो हमारे लिए हर चीज़ को डिस्कवर करता है. वो सुपीरियो ही है जिसको ये पता है कि हमारी मनी अभी इंग्लैंड से ट्रांसफ़र नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो लैक ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम वो बैंक मैनेजर को उसकी लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोल चुका है. दैट इट वॉज नॉट द पुअर मैनेजर्स फॉल्ट डिड नॉट डेटर हिम इन लीस्ट, ठीक है. एटलीस्ट ये पुअर मैनेजर का फॉल्ट भी नहीं है जो उसको इतना कुछ बोलने के लिए मजबूर करता है. इट वॉज सुपीरियो हु पेड अवर होटल बिल, हु ऑर्गेनाइज्ड अ कार टू कैरी अवर लगेज टू द विला एंड हु ड्रोव अस टू देयर हिमसेल्फ, हिज कार पिल्ड हाई विद ग्रोसरीज दैट ही हैड परचेज्ड फॉर अस. क्लियर. नाउ वो बता रहे हैं कि सुपीरियो ही है दैट वाज हु पेड अवर होटल बिल्स आल्सो, और वही है जिसने हमारे लिए कार्ट को अरेंज किया है लगेज उठाने के लिए, विला में लेके जाने के लिए. हु ड्रोव अस देयर वेरी केयरफुली, और उसने कार पाइल्ड होता है जो घर के लिए हम किराने का सामान खरीदते हैं, ग्रोसरी वगैरह, तो वो सारा कुछ उसने हमारे लिए परचेज किया. दैट ही न्यू एवरीवन ऑन द आइलैंड एंड that they all knew him we soon discovered was no idle boast, ठीक है ना. now the meaning of this line कि हम we know him very well and he also know us very well and on the island nobody is there, you have to find out that
आइडल बूस्ट, मतलब उसके जैसा आइडल हमने आज तक नहीं देखा। वो हमें बहुत अच्छी तरह जानता है और हम उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। Wherever his car stopped, half a dozen voices would shout out his names, and hands would beckon him to sit at the little tables under the trees and drink coffee. जब कार वहाँ पे जाके रुक जाती है, हाफ ऑफ डजन वॉइसेस, ठीक है, वुड शाउट आउट हिज नेम्स, हाफ ऑफ डजन बहुत सारी आवाज़ें उसके नेम को रिपीट करती हैं, शाउट करती हैं। हैंड्स वुड बैकॉन, बैकॉन सिग्नल समवन टू कम नियर, ठीक है, बैकॉन इशारा करना, बहुत सारी आवाज़ें उसको बुलाती हैं। हिम टू सिट द लिटिल टेबल्स अंडर द ट्रीज एंड ड्रिंक कॉफ़ी, ठीक है ना, मतलब दे आर सो मैनी पीपल्स हु लाइक हिम वेयर दे आर शिफ्टिंग देयर, एंड द स्पीरियो इज़ very much liked by the people, and they also invited him to sit under the trees and for drink coffee. Policemen, peasants and priests waved and smiled as he passed. Fishermen, grocers and cafe owners greeted him like a brother, ठीक है, everybody knows him, rather a policeman, peasants, priest waved and smiled, ठीक है, for he passed, and fishermen, grocers, cafe owners greeted him like a brother. They respected his honesty and his brilliance above all. They adored his typically Greek scorn and fearlessness when dealing with any form of governmental red tape. Now, this is the main reason why he is liking by the so many people. First, he is completely a honest man. As I told you, Spiro is just a name for servant, but actually he is not a servant. He is completely a family member who take all control of their affairs, ठीक है. He is a completely honest man, brilliant, aggressive behavior, ठीक है, मतलब वो जहाँ पे जिस तरह की सिचुएशन होती है वैसे ही बिहेव करता है, ठीक है. अडोरस होता है, एक लव होता है, मतलब वो एक ऐसा पर्सन है जहाँ पे एग्रेसिव होना है, अग्रेसिव होता है, जहाँ पे लव शो करना है, लव शो करता है, ठीक है. कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट करना, एंड फियरलेसनेस व्हेन डीलिंग विद एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंटल रेड टेप, ठीक है ना. इवन वो इतना ज़्यादा निर्भय है, ठीक है, फियरलेसनेस ही, वो किसी से नहीं डरता. He is completely a fearlessness person who have dealing with any form of governmental red tape, ठीक है, मतलब वो चाहे किसी भी चीज़ सिचुएशन से हैंडल करना हो, वो बिल्कुल निर्भय होकर उस चीज़ को हैंडल करता है. On arrival, 2 of our cases containing linen and other things had been confiscated by the customs on the curious grounds that they were merchandise. Okay, now confiscated means officially took something away. Customs government department that checks the goods brought into a country, ठीक है, आपको पता होगा कस्टम्स आपके सामान वगैरह को चेक किया जाता है. कस्टम्स डिपार्टमेंट्स दैट चेक्स योर गुड्स ब्रॉट इनटू ए कंट्री. एंड मर्चेंडाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्चेंडाइज? गुड्स दैट आर ब्रॉट और सोल्ड, ठीक है. सो मीनिंग ऑफ दिस लाइन, ऑन अराइवल टू अवर केसेस, हमारे जो जो केसेस थे कंटेनिंग विद लिनन एंड अदर हैड बीन कन्फिस्केटेड, ठीक है ना, ऑफिशियली टुक अवे दैट, एंड आल्सो बाय द कस्टम्स के द्वारा वो चेक किए गए थे. क्यूरिशियस ग्राउंड्स दैट वर मर्चेंडाइज, ठीक है ना, गुड्स दैट वी हैव टू ब्रॉट एंड सोल्ड, विच थिंग्स वी हैव टू टेकन टू अनदर कंट्री दैट वाज completely charging from the government. So when we moved out to the Strawberry Pink Villa and the problem of bed linen arose, mother told Spiro about our cases, languishes in the customs and asked his advice. सो ठीक है, जब उन्होंने स्ट्रॉबेरी पिंक विला में मूव किया, ठीक है, अबाउट दैट केसेस, एज आई टोल्ड यू, उनके कस्टम्स के पास केसेस हैं चेकिंग के लिए. सो मदर ने सुपीरियर से एडवाइस ली, ठीक है. लैंग्वेजिंग्स मीन्स बीइंग फोर्स्ड to stay somewhere, ठीक है. then mother take advice of the superior about our cases. languishes means being forced to stay somewhere, मतलब जो वहाँ पे ज़बरदस्ती सामान रखा गया है इन द कस्टम्स, एंड आस्क्ड हिज एडवाइस. तो मदर ने किसकी एडवाइस ली? सुपीरियर की. गॉलेज मिसेस ज्वेल्स, ही bewildered, his huge face flushing red with wrath.
क्लियर। अगे अब इसको गुस्सा आ गया सुपीरियर को। ब्रिवेल्ड शाउटेड इन एंगर, ठीक है। वार्थ अगेन मीनिंग इज एंगर। गॉलेज, ठीक है, वो उनको बोल रहा है कि कैसे पर्सन है वो। ही ब्रिवेल्ड हिज ह्यूज फेस फ्लशिंग रेड, ठीक है ना। नाउ सुपीरियर इज कम्प्लीटली इन एंगर है। शाउटेड इन एंगर आल्सो, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसका फेस रेड हो गया गुस्से से। वाइज यू नेवर टेल्स मी बिफोर, ठीक है ना। ये वाइज एस की ये लैंग्वेज सुपीरियर्स की है। नाउ वो कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई विल टेक यू डाउन देयर्स टूमोरोज एंड फिक्स दैम्स, आई नोज दैम्स ऑल्स एंड दे नोज मी, लीव्स एवरीथिंग टू मी, आई विल फिक्स दैम्स, ठीक है ना। Now superior told him कि why you didn't tell me before earlier that I will take down all the things up to tomorrow, ठीक है। वो कह रहा है मैं कल तक सब कुछ ठीक कर दूंगा एंड फिक्स दैम, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। आई नोज दैम, कहता है मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और वो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। लीव्स एवरीथिंग टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरी केयर। The following morning, he drove mother down to the customs shed. We all accompanied them for we did not want to miss the fun, ठीक है। नाउ बोल रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग ही ड्रोव, ठीक है, ही ड्रोव मदर डाउन, मदर को ले गया वहाँ पे कस्टम शेड्स के पास। और वी ऑल अकम्पनी दैम, मतलब हम फैमिली के और मेंबर भी उसको कंपनी कर रहे थे। बिकॉज वी did not miss the fun. Superior rolled into a customs house like an angry bear. Where's these people's things? He inquired of the plump little customs man, ठीक है ना। नाउ जब वो Superior जैसे ही वहाँ पे जाता है, he completely in anger rolled into a customs house like an angry bear. वो उन पे कैसे पड़ता है, एक नाराज बियर की तरह वो उनको खाने को जाता है। वेयर्स दीज पीपल, कहाँ हो तुम लोग जिन्होंने हमारा सामान रखा है। इंक्वायर्ड द प्लम्प ऑफ लिटिल कस्टम्स मैन, उनको काफ़ी बोलता है। यू मीन देयर बॉक्सेस ऑफ मर्चेंडाइज, आस्क्ड द कस्टम्स ऑफिशियल इन हिज बेस्ट इंग्लिश, ठीक है। नाउ यू मीन देयर बॉक्सेस ऑफ मर्चेंडाइज, ठीक है ना। वहाँ पे मर्चेंडाइज जो आपने गुड्स को ब्रॉड और सोल्ड किया, दैट वाज द बॉक्सेस यू वांट टू आस्क अबाउट अस। व्हाट्स यू थिंक्स आई मीन्स वी हैव कम्स टू टेक दैम, स्क्राउल्ड सुपीरियर गेट्स दैम रेडी, ठीक है। सुपीरियर पूरी तरह से उनसे बहस करने के लिए रेडी है। वो कह रहा है आप कहना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू मीन टू दैट, ठीक है। ही टर्न्ड एंड stalked out of the shed to find someone to help carry and luggage. When he returned, स्पीरियो टर्न करता है और वो किसी को शेड में लेके आने के लिए, टू फाइंड समवन, ठीक है ना, हेल्प करने के लिए, कैरी लगेज ढूंढने के लिए टर्न करता है। व्हेन ही रिटर्न, ठीक है, बाहर चला जाता है, जब वो शेड के बाहर किसी को हेल्प के लिए बुलाने के लिए कि जो उसकी कैरी लगेज को कैरी करने में उसकी हेल्प करे। बट व्हेन ही रिटर्न ही सा दैट द कस्टम्स मैन हु हैड टेकन द कीज फ्रॉम मदर वाज जस्ट लिफ्टिंग द लिड ऑफ द वन ऑफ द केसेस, ठीक है ना। तो क्या कहता है, जब वो वापस आता है वो क्या देखता है कि कस्टम मैंस ने ना उसकी मदर से, मतलब उनकी जो ऑनर है, मदर है, उनसे कीज़ ले ली हैं, सूटकेस की कीज़ ले ली हैं। एंड वाज जस्ट लिफ्टिंग द लिड ऑफ द वन केसेस, वो एक अटैची की, एक केसेस की ताला खोलने ही वाले थे कि सुपीरियर विद अ ग्रांट ऑफ वार्थ सर्च्ड फॉरवर्ड एंड स्लैम्ड द लिड डाउन ऑन द अनफॉर्चुनेट मैन्स फिंगर, ठीक है। सुपीरियर ने जब जो देखा वो इतने गुस्से में वहाँ पे आया और उसने खींच ली, मतलब उसने उसके हाथ पे, फिंगर्स पे उसने मारा। स्लैम्ड मतलब उसको मतलब स्लिप किया एंड लेड डाउन द अनफॉर्चुनेट मैन्स फिंगर, ठीक है ना। उसके बहुत ज़ोर से उसने उस कस्टम मैन के हाथ में मारा कि जो लिड की चाबी थी वो नीचे गिर गई। व्हाट्स फॉर यू ओपन इट, ही आस्क्ड ग्लैरिंग, वो कह रहा है कि तुम इसे क्यों खोल रहे हो। द कस्टम ऑफिशियल वेविंग हिज prinched hand about protested wildly that it was his duty to examine the contents, ठीक है। जो कस्टम ऑफिशियल है उनको बहुत बुरा लगा कि हाउ दे हैव टू टच देयर फिंगर्स लाइक दैट एंड वेविंग द पिंच, वो भी उसको हाथ आगे करके दिखा के बोलते हैं प्रोटेस्टेड वाइल्डली, ठीक है, अपने आप को डिफेंड करते हैं, जैसे किसी को हाथ दिखा के वार्निंग दे के बोलना। दैट इज़ अवर ड्यूटी टू एग्जामिन द कंटेंट्स, ड्यूटीज सेड स्पीरियो विद द फाइन स्क्रोन, वो फिर से चिल्लाता है कि ड्यूटीज, व्हाट अबाउट योर ड्यूटीज, व्हाट यू मीन्स ड्यूटीज, इज़ इट योर ड्यूटीज़ टू अटैक्स इनोसेंट फॉरनर्स, कहता है ये आपकी ड्यूटी है कि आप इनोसेंट फॉरनर्स पे
अटैक कर रहे हो, ट्रीट्स दैम लाइक अ स्मगलर्स, आप फॉरेनर्स को जो जहाँ पे शिफ्ट हुए हैं अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री से जहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, आप उनको स्मगलर की तरह ट्रीट कर रहे हो। इज इट योर ड्यूटीज़? Spedio paused for a moment, breathing deeply. Then he picked up a large suitcase in each great hand and walked towards the door. ठीक है, फिर सुपीरियर उनको काफ़ी बोलने के बाद पॉज लेता है, चुप कर जाता है, breathing deeply, take a long breath. Then he picked a large suitcase, each great hand, and walked towards the door. He paused and turned to fire the parting shot. I knows you Christy sons, you don'ts, you go talking about duties to me. ठीक है, चुप करके जब वो बाहर सामान लेके जा रहा होता है, वो फिर से बोलता है, टर्न करता है, कहता सब पता है मुझे तुम लोग की क्या ड्यूटीज़ है, तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते। आई रिमेंबर्स व्हेन यू वाज फाइंड ट्रैवल 1000 टेकमन्स फॉर डायनामाइटिंग फिश। कहता मुझे सब कुछ याद है जब तुम लोगों ने हम लोगों पे 12,000 टेकमार्क्स का फ़ाइन लगाया था just for the dynamiting fish. I won't have any criminal talkings to me about your duties. ठीक है ना, मुझसे अपनी ड्यूटीज़ के बारे में कोई भी बात मत करो। I don't want have your criminal talkings. ठीक है ना, मुझे तुम लोग की ऐसी बातों को नहीं सुनना। We rode back from the customs in trip, all our luggage intact and unexamined. Now what is the meaning of this line? We rode back means हमारी पूरी फैमिली कस्टम ऑफिस पे विजय हासिल करके आई थी। होता है विजय हासिल करना। ऑल ओवर लगेज, हम अपना सारा सामान वापस ले आए विदाउट एनी काइंड ऑफ एग्जामिन, मतलब वो सुपीरियर ही है जिसने हमारा सामान उन लोगों को एग्जामिन नहीं करने दिया, टच नहीं करने दिया। विदाउट एनी काइंड ऑफ डिक्लेरेशन ही हैव टू बी शो द कंप्लीट डेडिकेशन टू आवर हाउस। मीन्स सुपीरियर इज जस्ट नॉट अ सर्वेंट फॉर अस, ही इज अ कम्प्लीटली लाइक very faithful person to us. ठीक है, so बच्चे today we have to complete up to here because this chapter is too lengthy. Try to learn these word meanings. Not try, please learn the word meaning of this chapter. And from where up to read this chapter now, there are first, second and third, these 3 questions we are going to complete. Okay, describe the villa and its garden in your own words. As I told you in first paragraph, we all the things we have to describe in your first question. The villa was small, square, pink. Shatters were cracked at some places, like that faded creamy green color. As I told you, many flowers like roses, pansies, marigolds. ठीक है, as I told you in first paragraph, we all the take a description of the villa and its garden. Okay, next question, how do we know that Spedio was much loved by the people of Corfu? ठीक है ना, where they are shipped, that is a place where the people are shifting, so everyone knew him. ठीक है, his car stopped, people would shout out his name, beckon him to sit their tables and under the trees and drink coffee with them. Policeman, peasants, priests smiled. As we all read these things in the chapter, so you have to learn it. Next question is about that, how do Spedio take control of the dual families affair? Give intenses. ठीक है, मैंने आपको बताया था he took a complete control of the dual families affair. He did not sort of things of the families, would take them for shopping, bargaining of their behalf, everything managed from them. ठीक है, everything he have did for them. Spedio told the bank manager about his lack of organization. These are the intenses. Intense होते हैं example. In this answer we just give them some examples what Spedio did for them. He paid the hotel bill, carried the luggage, everything he have to manage for them. Okay, now you have to learn these first 3 questions and as well as word meanings also. Clear? Thank you. Have a nice day.